online classes. Students, in the chapter vector algebra, I told about in the previous video types of vectors. In this video, I am going to discuss some more points on the vectors. So, first is addition of vector. Addition of vectors. Addition of vectors. Vector को जोड़ना. How we add the two vectors? Let vector A and vector B be two vectors. And I already told what is vector. Vector has an initial point and also a terminal point. So let vector A is equal to AB vector and vector B is equal to BC. A is its terminal initial point, B is terminal point, and in vector B there is B is its initial point and C. So for adding these two vectors, first this is vector A, so this is AB vector. Now on the terminal point of vector A, we have to draw a vector, this vector B, whose initial point on the terminal point of vector A. So this is BC vector. Now when we add these two vectors, so these two vectors, then we have to find a third vector which has its initial point on the initial point of vector A and the terminal point of in the terminal point of vector B. So ये हमारे पास जो वेक्टर होगा R वेक्टर, जो कि इन दोनों का सम होगा A प्लस B. सो ये हमारे पास जो AC वेक्टर आएगा वो हमारे पास वेक्टर A और वेक्टर B का सम होगा. So the addition of vectors, vector A and vector B is vector R is equal to AC vector is equal to AB plus BC. So vector R is equal to AC vector is equal to A vector plus B. This law of addition is called triangle. स्टूडेंट्स, जब हमें दो वेक्टर्स को ऐड करना होगा तो सबसे पहले हम एक वेक्टर खींचेंगे. मान लीजिए वेक्टर वो A है, इसका की कुछ या इनिशियल पॉइंट A है एंड उसका टेल जो है वो A में है और उसका हेड जो है टर्मिनल पॉइंट वो B है. अब हम लोग दूसरा वेक्टर जिसको कि ऐड करना है A के साथ में, उसको B के इनिशियल पॉइंट से वेक्टर AB या वेक्टर A के टर्मिनल पॉइंट से शुरू करते हुए आगे की तरफ बढ़ाना है और वेक्टर BC है, वेक्टर B को जो है शो करना है. लास्ट में एक ऐसा वेक्टर खींचना है जो वेक्टर A के इनिशियल पॉइंट से शुरू होकर के और वेक्टर B के टर्मिनल पॉइंट पे एंड हो. यही जो लास्ट वाला वेक्टर होगा वो हमारा इसका एडिशन होगा, सम होगा इन टू वेक्टर्स का. सो वी हैव टू फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर और वेक्टर एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स A and B by this triangle method, because we make the triangle. This is called the triangle. आपको ये ध्यान रखना है बच्चों कि ये हमारे पास वेक्टर जो खींचा उसकी पहले वाले वेक्टर के शीर्ष से दूसरे वाले वेक्टर की टेल से शुरू करते हुए हम लोग खींचेंगे और लास्ट में जो वेक्टर जो उसका रिजल्टेंट आएगा वो
अब यहाँ पर लिख लीजिए जब नंबर 2 कन्वर्टर ये कॉमन पार्ट है, मींस कॉमन पार्ट मतलब स्टूडेंट्स बिकॉज ये टर्मिनल पॉइंट और इसका इनिशियल पॉइंट सेम हो गया। इसका टर्मिनल पॉइंट पहले वाले वेक्टर का और दूसरे वाले वेक्टर का इनिशियल पॉइंट एक ही पॉइंट में कोइंसाइड कर जाएंगे, तब हम लोग जब इसका एसी वेक्टर आ जाएगा। यहाँ देखिए एसी वेक्टर फाइंड आउट हो जाएगा, यही इसका रिजल्ट है। नाउ स्टूडेंट्स properties of vector addition, properties of vector addition, properties of vector addition. Number first property, vector addition is commutative. वेक्टर एडिशन commutative होता है। It means for two vectors, vector A plus vector B is equal to vector B plus vector A. It means बच्चों अगर two vectors हमारे पास given है और उनको ऐड करना है तो चाहे तो A और B को ऐड करें या B को A से ऐड करें, दोनों का वैल्यू सेम आएगी। So vector A plus vector B equal we make and write vector B plus vector A. This is the commutative law. तो वेक्टर जो एडिशन होता है वो commutative law को होल्ड करता है। Second, vector addition is associative. Vector addition is associative. What do you mean by associative? For associative, we may take three vectors. So for three vectors, vector A, vector B and vector C and vector C. Vector A plus vector B plus vector C is equal to vector A plus vector B plus vector C. This is associative. It means अगर हम वेक्टर A में B और C को ऐड करके फिर A से उसको ऐड करें, वो इक्वल होगा A प्लस B को ऐड करके फिर C से ऐड करें, तो ये वैल्यू हमारे पास एसोसिएटिव लॉ होती है। दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव। वेक्टर एडिशन इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम होगी, तो ये वेक्टर एडिशन जो होता है वो एसोसिएटिव होता है। इन साचर नियम का पालन करता है, ये क्रमिक नियम होता है। कम्यूटेटिव को हिंदी में बोलते हैं स्टूडेंट्स क्रमिक नियम और एसोसिएटिव को हिंदी में बोलते हैं साचर नियम। नाउ स्टूडेंट्स distributive law, for any scalar lambda vector A plus vector B is equal to lambda vector A plus lambda vector B. अगर इन दो वेक्टरों के सम में किसी लैम्डा स्केलर से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये स्केलर का जो मल्टीप्लाई होगा वो दोनों में बढ़ जाएगा, दोनों में इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो वेक्टर एडिशन होल्ड्स डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। थर्ड पॉइंट इज दैट वेक्टर एडिशन हैज identity element आपका जो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? आइडेंटिटी एलिमेंट वो होता है अगर किसी वैल्यू में हम लोग एक ऐसी वैल्यू अब एडिशन के रिस्पेक्ट में करना है, तो अगर किसी वेक्टर में वेक्टर के फॉर्म में करना है तो किसी वेक्टर में ऐसा वेक्टर जो ऐड करो जो कि सेम वही वेक्टर दे दे, तो फिर हम कहेंगे कि वो जो एलिमेंट आया वो हमारे पास आइडेंटिटी वेक्टर है। सो
इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स एलिमेंट। सो वेक्टर एडिशन में होल्ड्स इनवर्स एलिमेंट। वेक्टर एडिशन में इनवर्स एलिमेंट्स रखता है फॉर एनी वेक्टर ए अब हमारे पास इनवर्स एलिमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब इनवर्स एलिमेंट फाइंड आउट करने किसी वेक्टर ए के लिए इसका इनवर्स एलिमेंट निकालना है। तो इसका इनवर्स एलिमेंट में निकालने के लिए ऐसी चीज को ऐड करो जिससे का आइडेंटिटी एलिमेंट मिले। सो स्टूडेंट्स, अगर हम वेक्टर ए में माइनस वेक्टर ए ऐड कर देंगे तो हमको जीरो वेक्टर मिल जाएगा जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो ये हमारे पास इनवर्स एलिमेंट है। सो माइनस वेक्टर ए इज identity element of vector A. So students, these are some properties of vector addition. Vector addition ये properties hold करता है, वो commutative होता है, वो associative होता है, वो distributive law को hold करता है students, and वो identity element भी रखता है और students वो inverse element भी hold करता है। Now students, multiplication of a vector by a scale। किसी वेक्टर में स्केलर से लेट स्मॉल m be a scalar and vector A is a vector, then small m a vector is called स्केलर मल्टीप्लिकेशन। And this is also a vector। So students, अगर किसी हम वेक्टर या किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सिंपल मल्टीप्लाई एज इट इज m into वेक्टर a हो जाता है। तो इसको हम लोग स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं और जो ये आता है रिजल्ट ये आता है वो हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी ही होता है। तो याद रखिए स्केलर का जब हम लोग वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमेशा वेक्टर क्वांटिटी देता है। नाउ स्टूडेंट्स, laws of scalar multiplication। स्केलर मल्टीप्लिकेशन के क्या रूल होते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट, अगर हम m वेक्टर a लिखें या m a वेक्टर लिखें वो कोई मीनिंग नहीं है, सेम मीनिंग रखता है। वेक्टर a इंटू m कर दें और या फिर m इंटू वेक्टर a लिख दें वो सेम मीनिंग कहा m स्केलर है और a वेक्टर। पर सेकंड m इंटू m वेक्टर वी कैन राइट m वेक्टर a वेक्टर, सॉरी m a वेक्टर। अगर हम लोग स्केलर को आपस में मल्टीप्लिकेशन में इधर उधर लिखते हैं तो हमें उसके रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। थर्ड स्टूडेंट्स, third is that m vector a plus vector b is equal to m a plus m b। I already told that अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं एड में लगे हुए उसके साथ में स्केलर का मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है m a वेक्टर प्लस m b। एंड फोर्थ इज that m plus n a vector। So we can write this is m a vector plus m a vector। So these are some laws or some properties of scalar multiplication। स्केलर का वेक्टर से मल्टीप्लिकेशन कौन
Now student, subtraction of two vectors. Let A and B are two vectors. So we have to find A minus B. So actually students, so A minus B is equal to A vector A plus vector A plus vector minus. It means अगर हमको A से B को सेपरेट करना है तो इसमें इसका मतलब ये हुआ अगर A में और माइनस B को ऐड कर देंगे तो हमको ऑटोमेटिकली A minus B फाइंड होगा. So let AB vector is equal to vector A and BC vector is equal to vector B. So student, this is vector A. So AB and this is vector B. Now vector minus B means students same magnitude but opposite direction. Vector B और माइनस वेक्टर B में क्या डिफरेंस है? सिर्फ मैग्नीट्यूड तो वही है, लेंथ वही रहेगी, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाएगी. तो अगर वेक्टर B इधर है तो ये वेक्टर ये हमारे पास जो हो जाएगा ये माइनस डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाएगी स्टूडेंट्स. ये माइनस B वेक्टर. दिस इज यू कैन राइट BD. This is BC. So if we this is the resultant. So AD is equal to AB plus BD. So AB is vector A minus this is minus